Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to everybody and thank you so much for staying tuned to PTV Sports. You're certainly watching the post-match analysis on Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. Ladies and gentlemen, what a ferocious, vicious and unforgiving knock by Australia. And that's certainly something which Netherlands will remember for days to come. But ladies and gentlemen, at this point of time, I believe that it is of utmost obligation that I need to introduce my worthy co-host, who happens to be Ms. Roha Nadeem. Hello Roha, assalamu alaikum. Did you like the action today? Walaikum assalam. I certainly did. And if you look at the margin, just forget everything. Forget the match summary. Forget the individual scores. सिर्फ आप वो मार्जिन देखें 309 रन्स. ये पूरी टीम्स जो हैं इकट्ठे बैटिंग करके नहीं बना सकती हैं इतने रन्स जितना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मार्जिन है. और ये जिस तरह हम प्री मैच में भी बात कर रहे थे कि पॉइंट से कई ज़्यादा मीनिंगफुल है ये दोनों टीम्स के लिए. बट नाउ ऑस्ट्रेलिया विद दैट काइंड ऑफ अ बूस्ट टू देयर नेट रन रेट, आई थिंक दिस विन विल मीन a lot more to them than just those 2 points. Or there is a lot to talk about from today's match. I'm going to go ahead and introduce my wonderful panel who are... But Roha, before we do that, why don't we take a good look at the match summary and the points table? Yeah, I think we need to refresh what happened a bit because it's all in a haze right now. But let's take a look back at what Warner did once again. Exactly. So, ladies and gentlemen, taking a good look and an overview on what actually happened today on the 24th game of the ICC Men's World Cup. But over here, certainly, batting first, it was Maxwell. My God, I think that everybody needs to remember that's one of the fastest centuries that we have come across as well. Before this, I think it was Shahid Afridi on 45 deliveries on 40, 106. Warner once again with another ton. Then, there's Smith and then there's Labuschagne as well. Imagine that Smith and Labuschagne with a half century and 2 of the batters with the tons as well. I think that's something which certainly did dominate over Netherlands. Moving on towards Netherlands, they were booked in 90, nothing to be mentioned over there. But yes, obviously, while we are to talk about the bowling, was Logan Van Beek with 4 of 74, then Bas de Leede with 215. But that's something raises a lot of question marks. And then there's Aryan Dutt. Well, certainly spinning both ways didn't work against Australia. Moving on towards Zampa. Once again, imagine the figures. Just look at the figures. 4 wickets for 8 runs and 3 overs. Then there was Marsh with 2 for 19. And then there was Pat Cummins. Well, ladies and gentlemen, Australia winning by 309 runs. What a magnificent win. Definitely a big win for them. 5-time world champions. Today they did play like world champions. अगर हम इस victory का impact देखें points table पे तो वो आपको बहुत जिसे कहते हैं ना large numbers में नजर आएगा. Especially in that last column. Look at Australia. They're now in the top 4. 5 games, 3 जीते हैं जी, 2 हारे. जो पहले 2 अपने games ऑस्ट्रेलिया हारा उसका ज़रूर दुख होगा इनको. But they've come back strongly now with 6 points and a positive run rate, a good looking run rate. They are at the number 4 spot. Meanwhile, Netherlands 5 में से 1 गेम सिर्फ जीते हैं, 4 हारे हैं. तो just with 2 points, they are now at number 10. They will not like that at all. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि they really do need much more than just points. They need to be securely in that top 8 section of the table at the end of the World Cup, because then that means that they will be able to play the Champions Trophy as well. तो एक बड़ा impact होगा इसका. अब इतना ज़्यादा हमने बात कर ही लिया है तो अब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, because I'm sure they are also dying to add के आज का मैच उन्होंने कैसे perceive किया. I've got with me Mr. Bazid Khan, Mr. Mohammad Hafiz and Mr. Rashid Latif. Gentlemen, assalamu alaikum. Welcome to Game On है. हमने जब सुबह बात की थी, फेवरेट्स की बात हुई थी. राशिद सर, did you think कि ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े मार्जिन से जीतेगा आज? मैसेज उनका क्लियर है बिल्कुल कि हम यहाँ पे फाइनल खेलने आए. आज के मैसेज ने दिया है. उनका नेट रन रेट 1.14 चला गया है. Exactly. और बाकी नीचे जितनी भी 4 टीम का है प्लस में, बाकी सब माइनस में है. तो इनको आगे एडवांटेज इसका होगा. जो आज बिग मार्जिन डिफीट हुई है ना, ये सेकंड शायद बिगेस्ट है, तो उसमें इन्होंने अपने नेट रन रेट को भी बेहतर किया है. और मैसेज तमाम टीम को दे दिया है कि ऑस्ट्रेलिया आ गई, वापस आएगी. और वो जिस तरह से नो डाउट साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रही है, लेकिन आज जो 39th ओवर में मैक्सवेल आया, सिर्फ 11 ओवर के अंदर 40 बॉल ली हैं उसने. और कमाल एक होता है कि सीधा मारना, जो रिवर्स में कमांड हासिल की है, कमाल थी. Exactly, Hafiz bhai, moving on to you, how do you look from here onwards? Australia dominating the tournament. Do you think that the other teams will stand a chance? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इन्होंने बात कर दी. मैं थोड़ा सा नीदरलैंड्स के लिए बात करना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में ना समटाइम हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं
व्हेन वी डिमांड टू मच फ्रॉम अस। गलत फैसला। तो मैं पहले कह रहा था कि मैं ये समझ नहीं पाया कि एक तो मुझे लगता है कि इनके तमाम प्लेयर एक बेहतरीन लिमिटेड रिसोर्सेज की बेहतरीन एग्जीक्यूशन करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये वाला फैसला मेरी समझ से बाहर आता रहा है कि आप इतनी बड़ी टीम को 2 मरतबा जीतना चाह रहे हैं, पहले उनको उनकी बैटिंग में और फिर बाद में जो वो करेंगे उनकी चेस करके। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ना समझ आने वाला फैसला था, और जितने ज़्यादा हम इंटरेस्टिंगली ये मैच देखना चाह रहे थे और इनकी जो हिस्ट्री हमें बाजीद भाई ने बड़ी मेहनत करके जो हमें बताई, और हम चाहते थे कि ये अच्छा उसके अंदर जो इम्पैक्ट डालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। तो नीदरलैंड्स के लिए मुझे लगता है कि मुश्किलात और होंगी, क्योंकि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनको यहाँ पे अचीव करना है वो टॉप 8 के अंदर फिनिश करना है, ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ले लें, जो कि अभी लगता है कि इस डिफीट के बाद उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलें, बिल्कुल ये ज़रूर इनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहा। ऑफ कोर्स पैट कमिंस ने डिसाइड किया था कि आज वो पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स का भी यही कहना था कि अगर हम टॉस जीत भी जाते तो तब भी हमने बॉलिंग ही करनी थी। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि दैट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू कैच ऑन। बट बीके, थॉट्स नेदरलैंड्स के ऊपर आपने में काफ़ी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, नाउ दैट दे हैव लॉस्ट एंड बाय सच अ ह्यूज मार्जिन, हाउ वेयर डू यू पुट दैट इन दैट पर्सपेक्टिव? नहीं, वो तो हो गया। आज का जो मैच है वो सारा मैक्सवेल के नाम है। आज जो मैच याद रहेगा वो मैक्सवेल की ही वजह से है। राशिद भाई ने बात की, ये दुनिया का पहला बैटर है इन ओडीआई हिस्ट्री जिसने 100 किया है, और पहला बॉल इसने पोस्ट 40th ओवर फेस किया है। तो ये मतलब मामूली बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं जिस किस्म की उसने हिटिंग की है, जिस किस्म की शॉटें मारी। जब मैक्सवेल उस मूड में आ जाता है, उस जोन में आ जाता है, तो नेदरलैंड्स तो छोड़ें, कोई भी टीम होती भी हाथ नहीं तो वो हाथ नहीं आता। ये ऐसा मतलब आप अंदाज़ा नहीं होता कि आखिरी 10 ओवर में आके उसने 100 कर दिया। तो जब वो उसने मैच ऐसा मतलब जितना भी मैच नेदरलैंड्स को नज़र आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जब बैटिंग आई तो शायद वही, क्योंकि मैक्सवेल ने इतना उनका स्क्रैम्बल कर दिया सारा कुछ, सारा गेम प्लान, गेम प्लान तो नहीं, लेकिन इतनी हिटिंग कर दी कि वो बैटिंग में भी उस तरह से सेटल हो ही नहीं पाए। और मेरा ख्याल है कि जो वो आखिरी 10 ओवर का इफेक्ट आपको उनकी इनिंग्स, पूरी इनिंग्स में नज़र आया, बैटिंग इनिंग्स में। क्योंकि आज जो मैक्सवेल ने किया है, हम पता है कि मैक्सवेल इतना अच्छा खेल सकता है, लेकिन जब उसने पहले 2 शॉट मारे, जब सामने 2 ड्राइवें मारी, तो कमेंटेटर ने भी कहा कि आज ये लग रहा है कि शायद उस मूड में है। मैंने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आज शायद मैक्सवेल जो है वो उस वाले मूड में नहीं है, पाकिस्तान वाले मूड में नहीं है। आज लग रहा है कि ये ही मीन, यानी आज घोड़े नहीं खींचने पड़े। आज हमारे बॉलर ने आज शुक्र मैं सर यहाँ पे आप लोगों को एक और भी चीज दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मैक्सवेल का जो इम्पैक्ट मैसेज गया है उनके बाद, ये 350 वाला था, वहाँ मैसेज गया है कि बीके ने बोला है कि 400 तकरीबन 400 एग्जैक्टली जा रहा है मैसेज। जो उसका इम्पैक्ट हुआ जरा वो भी दिखाना चाहते हैं। आई बिलीव दैट यू नो इन टर्म्स ऑफ रन्स अगर हम बात करें तो इट हैपेंस टू बी द बिगेस्ट विन, और नंबर 2 आई गेस इन वर्ल्ड कप इट्स नंबर 1 एज वेल। We were talking about 300+ runs where, you know, if you win by this such big of a margin, I think that each and every player has contributed, but certainly the day goes to Maxwell. जी राशिद भाई, biggest win in ODIs हम बात कर रहे हैं, और दूसरे नंबर ODI की, वर्ल्ड कप की नहीं, ODI की है। ये ODI की है। ये इंडिया कप जीता इतने लंबे रन से। इंडिया भी जीता है सर पहले इससे, वर्ल्ड कप की भी ये आज का है। जिम्बाब्वे 304, USA, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ये 15 का है। पर्थ में हुआ था ये मैच, ये यादगार मैच था इनके लिए, और वाकई में बहुत बड़ी विन है ये। लेकिन आप ये देखें कि जो 3 इसमें से हैं वो, खैर एक तो यूएसए के खिलाफ, लेकिन 3 ऐसे हैं जो 2023 में है। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि 1 साइडेड मैचेस इसलिए हो रहे हैं कि एक प्लेयर एक इनिंग्स या 2 इनिंग्स बिल्कुल मैच को दूसरी टीम से बिल्कुल अवे ले जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे टीम्स की अपनी भी जो स्किल लेवल है उनके अंदर भी इतनी डिस्पैरिटी आपको लगता है बीके आ गई है कि इतने बड़े मार्जिन से जीतना, वही है 5 में से 3 जो मैचेस हैं वो इस साल हुए हैं। तो सिंगल इनिंग्स के अलावा भी टीम वाइज भी अगर आप देखिए, आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट? देखिए, जब ये जैसे फॉर इंस्टेंस मैक्सवेल है, मैक्सवेल ऐसी इनिंग्स खेलेगा तो अगली टीम बहुत मुश्किल है अगली टीम के लिए। क्लासन ऐसी इनिंग्स खेलेगा तो बहुत मुश्किल है अगली टीम के लिए। वो कमबैक करना, वो स्किल जो डिफेंसिव बॉलिंग स्किल है
वो बहुत कम टीम्स में आपको नज़र आ रही हैं कि आखिरी 10-15 ओवर में अगर एक बैटर मतलब बाउंड्रीज मार रहा है, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। रिवर्स स्विंग पुराने वक्तों में चले जाएं तो रिवर्स स्विंग होता था जिससे आप वापस आते, इस दफ़ा दो नए बॉल लगते हैं तो रिवर्स स्विंग भी नहीं होता। पिचेस अच्छी हैं, ग्राउंड है, पावर हिटिंग की बहुत पावर आ गई है प्लेयर्स में बाउंड्री क्लियर करने की, तो उसमें कमबैक करना मतलब रेयर हो गया है। अगर कोई पावर हिटिंग से ऑन टॉप हो जाता है तो वो एक तरफ ही बात चली जाती है, ऐसा नहीं होता कि वो रुक जाए एकदम। अब यहाँ पे इसको चले थोड़ा सा अगर आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि फॉर ऑल आवर व्यूअर्स फॉर एवरीबॉडी हुज आउट देयर, आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ सब्र के साथ हर काम अच्छा होगा बाजिद भाई। मैं हफीज भाई सिर्फ आपसे ये तस्करा करना चाहता हूँ, जहां हम कुछ बैटर्स को देखते हैं पावर हिटिंग करते हैं, जैसे बाजिद भाई ने अलूड किया है, हम रोहित को देखते हैं, शुभमन को देखते हैं, हम साउथ अफ्रीका की तरफ जाते हैं, क्विंटन डी कॉक को देखते हैं, क्लासन को देखते हैं। अब रीजन जो समझने वाला है वो ये है कि कैसे होता है कि एक टीम जब चार्ज करती है तो दूसरी टीम अभी तक कैचअप नहीं कर पा रही है। कोई भी दूसरी टीम हो, जितने फेज साउथ अफ्रीका को ले, एक मैच 100 रन से, एक 200 रन से, एक 150 रन से, तो कोई भी टीम कैचअप नहीं कर पा रही। इज इट डे और नाइट के, जो डे में जो बैटिंग कर लेते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए, पहले तो आपको मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि ये वर्ल्ड कप पहला कब हुआ था, बताएं आप? 75। मार्जिन ऑफ विक्ट्री सबसे ज़्यादा किस वर्ल्ड कप में आ रहे हैं? मार्जिन ऑफ विक्ट्री इस वर्ल्ड कप वजह क्या है? नजर पिचेस हो सकती हैं। नहीं, वजह यह है कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री इसलिए बढ़ रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बैटिंग है वो इन्वॉल्व हो गई है। पहले स्कोर होता था 220, 25, 30, इवन 60 ओवर का भी वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, तो 300 करना उस वक्त मुश्किल लगता था, ठीक है, और दूसरी टीम कहीं ना कहीं पास पहुंच जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि वो जो इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजिकल हिट करता है जब कोई बैट्समैन या कोई एक इनिंग, जैसे मैक्सवेल की आज इनिंग्स लगा लें या वार्नर की उस दिन मार्च की लगा दें, जब 350, 400 एक नॉर्मल टीम जब करती है तो आप साइकोलॉजिकल भी नीचे गिरते हैं, ठीक है, आप फील्डिंग में एकदम से आपका मोराल जो है वो टूट जाता है कि आप भाग के थक जाते हैं या सोच के थक जाते हैं। और फिर जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आप आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप कुछ सोचते हैं कि मैंने लाइन ऑफ द बॉल ने नहीं आना, मैंने सिर्फ शॉट मारनी है। तो इसलिए बहुत से जो टीमें हैं जब वो बाद में कोशिश करती हैं और वो अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश करती हैं, वो होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये मॉडर्न डे क्रिकेट, मैंने याद होगा आपको कि जिस दिन ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था मैंने कहा था कि इसमें ये सारे स्टैट बदल जाएंगे क्योंकि इसमें मॉडर्न डे क्रिकेट का तड़का लगना है, बिल्कुल। और इंडिया इज द बेस्ट वेन्यूज, दे प्रोवाइड यू द बेस्ट पिचेस जहां पे आप 400, पहले कितनी मरतबा वर्ल्ड कप ने हमने 400 देखा है? बहुत रेयर मरतबा। अभी कितनी मरतबा आपने 400 को टच करते हुए देख लो, और कितनी टीमें 350 प्लस बाय एवरेज कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका बाय एवरेज। तो इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट में जो इन्हेंसमेंट हुई है वो बैटिंग स्किल्स की हुई है। बॉलिंग अभी शायद मुझे लगता है कि वो अब इसके बाद मजीद सोचेंगे कि हमें कहां पे अपने आप को इंप्रूव करना है, लेकिन बैटिंग ने इमेंसली इंप्रूव किया है। जो शॉर्ट रेंज और इनोवेशन आई है ये शायद इससे पहले कभी नहीं। क्या बात, बिल्कुल। और अगर हम इनोवेशन की बात करें, शॉर्ट रेंज की बात करें, ऑफ कोर्स कीपिंग दैट प्रेशर एंड मोमेंटम गोइंग, हमने प्री मैच में जो हमारा सुबह का शो था, हमने मेरा ख्याल है कोई 7-8 मिनट की बात सिर्फ मैक्सवेल के ऊपर की थी, बिकॉज वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया वर जस्ट नॉट they weren't really up to the mark when it came to their number 3 to number 7 batters। और हमने ये बात भी की थी कि वो कहीं ना कहीं अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर काफ़ी रिलाई कर रहे हैं, जिनमें से स्मिथ की भी अभी तक हमने इनिंग्स ड्यू थी। और राशिद सर, इतनी हमने बात की मैक्सवेल की, आई थिंक उन्होंने सुन ली है, बिकॉज आज इस तरह के बल्ले से उनके आवाज़ निकली, आई थिंक उन्होंने कहा कि देखें जी ये दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। जब तक आप नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान के जितने प्लेयरों की हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, कहीं ना कहीं आके हमारी सुई वहीं पे आके रुकते हैं जी, पाकिस्तानी क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे। उसकी वजह यह है कि हम लोग इस तरह की बैटिंग करने के बारे में ना हमारे सेटअप के अंदर लोग जो कोचेज हैं वो सिखाते हैं, ना इनकरेज करते हैं, और ना ही हमारा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टच करता है। ये देखें आपकी स्क्रीन पर है ये लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरीज, और ग्लेन मैक्सवेल का नाम 2 बार है उस लिस्ट में। इसमें एक सेंचुरी जो आ रही है ना ओब्रायन की, ये सबसे अच्छी सेंचुरी, और उसका लास्ट कितनी देर किया है वो जो सेंचुरी थी इंग्लैंड की टॉप टीम के खिलाफ थी, और ये 311 थे शायद, वो 2011 में जाके टूटा वो रिकॉर्ड। बाकी इन्होंने भी की, डिविलियर्स की हमने देखी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। थोड़ा सा और बोल के फिर उसके बाद आदित्य की तरफ देखिए, हफीज ने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे आप गाड़ी का शौक है, आपको माइलेज देखते हो, आप आवर्स देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, कितने आवर्स ये प्लेयर्स बल्ले के साथ खेलते हैं, ये बहुत मैटर करता है।
हम कंपेयर अपने या दूसरों के साथ नहीं कर रहे, लेकिन जो टॉप प्लेयर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं ना, वो अराउंड द ईयर क्रिकेट खेल रहे हैं और टॉप क्लास के क्रिकेटर, चाहे वाइट बॉल खेल रहे हैं या कोई भी खेल रहे हैं, उनके पीछे अंडर द बेल्ट बहुत सारे आर्स हैं, माइलेज हैं उनके, जिसकी वजह से ये नहीं है कि रोज़ाना परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब ये करने पे आते हैं ना तो दूसरी टीम सिर्फ उनसे ही डरती है। सही। कन्वेंशनल क्रिकेट अब थोड़ी सी दबती जा रही है, रहती जा रही है, इसीलिए इनकी मार्केट, इनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली जी वाजिब भाई। मैक्सवेल ने कहा कन्वेंशनल क्रिकेट दबती जा रही है, लेकिन जो मैक्सवेल शुरू हुआ है उसके 5-7 बॉल जो पहले आपने 3 चौके देखे, खूबसूरत, वो तभी वो उस रिदम में आया ना। आपने पाकिस्तान के खिलाफ देखा, पहले बॉल पे इसने टांग ऐसे खोली और सामने आउट हो गया। आज इसने, अब ये तो नहीं कह सकते 10 ओवर में अपने आप को टाइम दिया, लेकिन अपने मुताबिक उसने 2-4 शॉटें सामने मारी, इधर मारी, एक थर्ड मैन पे मारी। वो तब उस जोन में नहीं गया था, अपने आप को उस जोन में फिर बाद में लेके गया ना थोड़ा सा। अब ये भी कहना कि जो 40 बॉल में 100 उसने टाइम का दिया, लेकिन उसने शुरू में 5-7 बॉल जो चौके मारे हैं वो कन्वेंशनल ही मारे हैं ताकि वो उस सिमत में आ जाए। आप अगर कमेंट्री सुन रहे हो तो वॉटसन भी कह रहा था कि इस प्लेयर के पास जो टैलेंट है, जिस किस्म की ये शॉटें मारते हैं, इसको ज़रूरत ही नहीं है कि पहले बॉल पे ट्राई करे, या क्योंकि इसने मतलब वो रिवर्सी पे छक्के मार रहा है या सामने छक्का मार रहा है, उसके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि वो अफोर्ड कर सकता है कि अपने आप को 5-7 मिनट सिर्फ पिच की पेस, बॉलर्स की पेस की सिमत में आके फिर खेले। तो आज जो वो खेला है, वो मेरा ख्याल जो पहले 3-4 बॉल जब उसके लगे हैं बल्ले में, तो आपको अंदाजा हो गया था कि आज ये वाकई आज ये बंदा मूड में आया है। इट इज सर्टेनली नॉट अ फ्लूक। जो 2015 में 51 गेंदों के ऊपर भी सेंचुरी कर चुके हैं, आज 2023 में दोबारा 40 पे करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जैसे उन्होंने बात और अभी 5 गेम्स रहते हैं। जैसे किसी सिंगर को कोई ना कि आप गाना गाएं तो पहले एक आध मरतबा मेरा गला खराब है और उसके बाद फिर सूट निकालता है। इसी तरह मैक्सवेल ने पहले अपनी तलवार के साथ 1-2 बॉल यूं खेले हैं, उसके बाद उसने कहा ट्यूनिंग हो गई है। Exactly. Ladies and gentlemen, with that, we're heading out towards a short break. Where credit is due, it's due, and that's something which has been a forte of PTV Sports. Don't go anywhere. We'll be right back. There's a little more to discuss. Game on air. जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड्स की। अ big, I think big is a small word for the amount of margin that this was for Australia to win against Netherlands. But then again, Netherlands really did not want to go down like this, especially 1 जून की तरफ से हमें स्पार्क देखने को मिला था earlier in this tournament against South Africa. I think a different version of the Dutch showed up today in Delhi. But nonetheless, I think Shahzad, it's good to know कि ऑस्ट्रेलिया हैव फाउंड देयर रिदम अगेन, स्पेशली जो पहले 2 मैचेस में जिनकी हम बात कर रहे थे, वार्नर की तरफ से वो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही थी, स्मिथ, ये 2 ऐसे नाम हैं जो उनके सीनियर प्लेयर्स में काउंट होते हैं। बट टुडे दे शोड, स्पेशली वार्नर, आई मीन आई वांट टू टॉक अबाउट हिम। हफीज़, हम जितनी कंट्रीब्यूशन की बात करते रहे, जितना ओनस था टॉप ऑर्डर पे पहले 2 मैचेस में, अब जो रिसेंटली 2 मैचेस हुए हैं, एक लास्ट मैच में 100, आज के मैच में 100, कैसे आप देखते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर इस स्टेज पे आके जहां पे टीम को इतनी ज़रूरत थी, वार्नर ने स्टेप अप किया। He showed why he has that experience. He showed that he has experience of playing in India, और हर चीज़ को मिला के एक शानदार बैक टू बैक 100s। देखें, प्लेयर तो वो हमेशा से शानदार रहे हैं और इसी तरह खेलते रहे हैं, लेकिन क्योंकि शायद जैसे डी कॉक के लिए हम बात करते हैं कि अपने आखिरी वर्ल्ड कप को लेके ये भी बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट होके क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी तक जितनी इनिंग्सें थी, पहली 1-2 इनिंग्सों में इन्होंने स्कोर तो किए, लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। लेकिन फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ जब इनको चांस मिलता है, उस चांस के मिलने के बाद जो इनका एक फ्लेयर है या जो खेलने का तरीका है वो टोटल बदल गया। आज भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो बारी ली, वो इसलिए बारी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं किया। सम टाइम जब आप बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के आते हैं तो आप कई मरतबा ग्रांटेड वे में जो है वो शॉट खेलना चाहते हैं, या आपको लगता है कि शायद मैं उसी
100 वाली इनिंग्स के साथ खेल रहे हो तो आप गलती कर जाते हैं। आज उन्होंने अपना टाइम भी लिया, टेक्निकल शॉट खेले और एक उनको चांस भी मिला जब कैच हुआ, वांडर मर्व ने जब कैच पकड़ा तो वो लगा तो था कि वो नीचे लग गया, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा चांस था कि फुल टॉस को उन्होंने सीधा मार दिया। लेकिन अदर देन दैट बहुत ही कंट्रोल इनिंग्स और एक और ऐसी कंट्रीब्यूशन जो फाउंडेशन चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया को वो उन्होंने प्रोवाइड की और करने के बाद ये जो मैक्सवेल का तड़का लगा है फ्रॉम डेविड वार्नर एंड ही इज नाउ इन दैट प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ मोस्ट हंड्रेड्स in World Cups, in ICC Men's Cricket World Cup. So there you go, Rohit Sharma at the top with 7 centuries, Warner at number 2 with 6 centuries, and just below him Sachin Tendulkar, Kumar Sangakkara, Ricky Ponting, BK. That is a list of greats when it comes to one-day cricket, and Warner just 1 century behind Rohit Sharma. कल संगाकारा ने एक ही 4 इकट्ठी कर दी थी एक ही उसमें वर्ल्ड कप में, और रोहित शर्मा ने भी मेरे ख्याल 5 इकट्ठी मतलब 5 सेंचुरियाँ कर दी थी एक वर्ल्ड कप में। वार्नर ने इस वर्ल्ड कप में 2 किए हैं। लेकिन वर्ल्ड कप्स में जो टीम आगे प्रोग्रेस करती है या जीतती है उनके बड़े प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो तभी वो बड़ा मैच जीती है। वार्नर का फॉर्म में आना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा एक सिग्नल है, प्लस राइट डायरेक्शन में वो ऑस्ट्रेलिया चल पड़ी है क्योंकि उनका बड़ा प्लेयर वनडे क्रिकेट में वार्नर परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अक्सर हम बात करते हैं लक की। लक जब आपकी तरफ चलती है उसमें कैश इन भी करना पड़ता है। हफीज़ ने बात की थी कैच उसका छुटा, पाकिस्तान के मैच में कैच छुटा, उसने 150 कर दिया। आज एक कैच था, एक रन आउट मेरे ख्याल 30-35 पे था जब मैक्स आउट ने बॉल नहीं पकड़ा और रन आउट हो सकता था, वो रन आउट नहीं हुआ, उसने 100 किया। तो जब आपको लक मिले तो फिर उसको मेक इट काउंट। तो वार्नर इज मेकिंग इट काउंट, और वार्नर का फॉर्म में आना वो कोइंसाइड करता है ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम की इंटेंसिटी बेहतर होने में। और चाहे उन्होंने पहले मैचेस में थोड़ा थोड़ा स्कोर किया, वो आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम की इंटेंसिटी नहीं नज़र आ रही थी फील्ड में, और ऐसे लग रहा था कि ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो हम यूज्ड टू है। जब उनका बड़ा प्लेयर फॉर्म में आया है तो वो सारी चीज़ें वापस आ गई हैं, और अब हम बात करें कि नहीं रिपल इफेक्ट देखने को ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई है, वो इंटेंसिटी उनकी फील्डिंग में स्पेशली वो वापस आ गई। एग्जैक्टली और ये जो आपने कॉन्टेम्पलेट करने की बात की, आई थिंक ये आइडियोलॉजी जरूर सेट करता है एंड सेट्स द पेसेस एंड द टोन फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल। मैं जरा राशिद भाई की जानिब भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि राशिद भाई जब हमने सुबह में बात की थी तो ये बात की थी कि अगर ट्रेविस हेड आते हैं तो शायद हो सकता है स्मिथ का नंबर चेंज करना पड़े, लेकिन पैट कमिंस स्टक विद स्टीवन स्मिथ हो वही है। और स्टीवन स्मिथ के लिए आज शायद वो जो उन्होंने टोन या कॉन्टेम्पलेट करने की या कैपिटलाइज करने की बात की, स्टीवन स्मिथ मेड श्योर कि वो एक अच्छी इनिंग्स खेले। जब इनके पास ऊपर से मारने वाले मौजूद हैं, बॉलर हैं, फिर नीचे भी हैं, तो 2-3 प्लेयर इनको चाहिए जो कि 30 ओवर में गेम को लेके चलें। आपने यही बात की थी, कम ओवर में चाहिए होगा। अगर 15 ओवर में 150 चाहिए तो हो तो जाता है, लेकिन कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो बीच में ऐसे जो अच्छे प्लेयर जो होते हैं टेस्ट मैच के, जो गेम को बिल्ड करते हैं, वो बहुत कन्वेंशनल क्रिकेट जो बात की है उनकी बहुत ज़रूरत है दोनों। और फिर ट्रेविस हेड वो ओपन करेंगे तो डिफरेंट ही नज़र आएगा। 2 लेफ्ट हैंडर शुरू से मारना शुरू करेंगे। वो भी लेफ्ट हैंडर। हमारा मैच खत्म हो गया ना, इसीलिए बोल रहे हैं मारो। अब हम एंजॉय करें। बट एनीवे, बैटिंग ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यू नो राइट फ्रॉम द टॉप हर किसी ने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट तो किया, बट मानस लाबुशैन के ऊपर ये नॉक, इवन तो बाकी उनके साथ कंपेयर करें अगर तो इतने ज़्यादा रन्स नहीं लगेंगे, लेकिन ये उनकी पर्सनल फॉर्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि थोड़ा लास्ट मिनट आए वो इस टीम के अंदर, बट नाउ दैट ही इज़ हियर ही वांट्स टू मेक श्योर कि वो अपनी स्पॉट को ही होल्ड्स ऑन टू इट। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिज नॉक टुडे? जी देखें, वो भी इंतज़ार कर रहे थे शायद इस तरह की अपॉर्चुनिटी का जहाँ पे थोड़ी बॉलिंग अटैक भी उतना थ्रेटिंग नहीं है जैसे आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बुरी फॉर्म में होते हैं या आप अपनी एक्सपेक्टेशन या लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाते तो प्रेशर आपके ऊपर माउंट करता है। आज की इनिंग्स डेफिनेटली एक तो उनका प्रेशर रिलीज़ करने के थोड़ा सा काम देगी, और दूसरा ये है कि वो जो एक टाई आनी है, क्योंकि इनकी और लबू और स्मिथ की किसी एक बंदे ने ज़रूर मिस आउट होना है। तो जैसे ही हेड आएंगे किसी एक ने मिस आउट होना है। तो आई थिंक ही परफॉर्म एट द राइट टाइम, जहाँ पे मैनेजमेंट के लिए सरदर्द दोबारा से बनेगा कि जब ट्रेविस हेड आए तो इन दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं, 2 नहीं खेल सकते। तो अब ये देखना ये है कि वो टॉस करते हैं
या फैसला करते हैं? फैसला करेंगे। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हम बैटिंग के ऊपर तो ऑब्वियसली भी शेडिंग लाइट यहाँ पे जरा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की जाने भी आते हैं। फॉर ऑल आवर व्यूअर्स जो सोचोगे यार कि नेदरलैंड्स के हवाले से भी बात होनी चाहिए, वेल सर्टनली उसके लिए समवट ऑफ परफॉर्मेंस नीड्स टू बी देयर एज वेल। वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। जब बाजिद भाई ने हिस्ट्री के हवाले से बात की थी तो गोइंग डीपर इनटू दिस टूर्नामेंट व्हाट कैन दे डू बेटर। बट फिलहाल सर एडम ज़ैम्पा पे बात करना चाहते हैं आपसे, राशिद भाई दोनों से। राशिद भाई ने कहा, आपने कहा विकेट टू विकेट, राशिद भाई ने कहा स्ट्रेटर वंस पे विकेट ले रहे हैं या ब्रेक पे विकेट ले रहे हैं। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट ओवर हियर, जहाँ पे एडम ज़ैम्पा was crucial for today's game। जिस तरह से उन्होंने विकेट्स हासिल की, जिस लेंथ पे उन्होंने बॉल वेरी की, मेरा ख्याल है आई थिंक दैट वाज समथिंग मैग्निफिसेंट फॉर एवरीबॉडी। ज़ैम्पा पे हमारी तैयारी बहुत है। सर ज़ैम्पा में बड़ी तैयारी है एग्जैक्टली। और जब हमने सर सुबह में भी बात की थी तो पहले 2 मैचेस में इनकी 1 विकेट थी, आखिरी 3 मैचेस में इनकी 12 विकेट। ना किसी भी जगह जाके थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 मैचेस लगते हैं, हमें तो 5 मैच लग गए हमारे। आई थिंक कंबाइंड अभी तक जो है वो 12 छेड़ो नहीं मुझे ना, अभी हम लोग लेकिन आई जस्ट वांट टू कम बैक टू द पॉइंट जो अभी बीके ने भी रेज किया वार्नर के ऊपर, कि जैसे ही वार्नर फॉर्म में आए हैं ऑस्ट्रेलिया हैव स्टार्टेड टू लुक लाइक देयर ओल्ड सेल्व्स। यहाँ पे ज़ैम्पा की हमने इतनी बात की, ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, एक स्पिनर है। अब 3 मैचेस में 12 विकेट्स उन्होंने ले लिए। यहाँ पे उनकी फॉर्म भी जैसे जैसे बेहतर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही की, लेकिन स्कोर कितना लग रहा है? 350 लग रहा है, 400 लग रहा है, तब जाके ज़ैम्पा आपको अच्छा लग रहा है, तब जाके वीक लिंक नहीं खुल रहा। वीक लिंक तो तब खुलेगा जब वार्नर ऊपर से रन्स नहीं करेगा, या ऊपर से उनकी बैटिंग, जब बैटिंग फेल हो रही थी तो इनकी बॉलिंग इनको बेल आउट नहीं कर सक रही थी। अब जब वार्नर ही उसमें, मतलब जो डिफरेंस वार्नर ही क्रिएट कर रहा है, ऊपर से वो उसने रन्स किए हैं तो सारा कुछ ठीक हो गया है। और वो मतलब एक टीम की, मतलब वो हार्ट बीट है टीम की, इस वक्त टीम की हार्ट बीट है। आप देखिए वो जो एक मैच जिसमें इसने कैच पकड़े हैं फील्ड में तो वो वापस आए हैं गेम में, क्या तो वो टीम की, मतलब एक बंदा होता है जो टीम की पल्स होता है, वो इस वक्त मुझे लगता है कि वार्नर टीम की पल्स है। वो डिक्टेट करता है कि इंटेंसिटी कहाँ पे जाएगी। जब वार्नर फॉर्म में है, जब स्कोर कर रहा है, तो आपको फील्डिंग में भी वो इंटेंसिटी वो डिक्टेट करेगा। मुझे ऐसे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा ऐसे है कि जी अगर वार्नर ऑस्ट्रेलिया की टीम में सही सिमत में चल रहा है तो बाकी सब कुछ इन प्लेस आ जाए। यानी कि अगर रन्स ऑन द बोर्ड नहीं होंगे तो शायद बॉलिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हफीज भाई आप भी जरा मुस्कुरा रहे हैं प्लीज। मैं वो इनकी ये जब बात करें ना कि ज़ैम्पा की बॉलिंग की होने की वजह, जब स्कोर ज़्यादा लग रहे हैं तो वो पंजाबी में कहते हैं कि जिदे कार दाने ओदे कमले भी सियाने। क्या बात। I think on this, Roha, we need to. I think yeah, we need to head for a short break. When we come back, a bit more to discuss about this match, about tomorrow's match, all of this waiting for you on Game On here. Game On है। ख़वातीनो हज़रात, हम गेम ऑन है में एक दफ़ा से आपको फिर से खुश आमदीद भी करते हैं, और जितने लोग जो हमारे साथ पहले से मुंसलिक हैं आपको वेलकम बैक भी कहना चाहते हैं। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के ऊपर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम के इस हिस्से में हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे बाजिद भाई ने सुबह में गुफ्तगू की, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया हमें नेदरलैंड्स का, वहाँ पर नेदरलैंड्स की फॉलो विकेट्स देख के, बिकॉज दे लुक्ड वेरी वल्नरेबल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, क्या मूविंग फॉरवर्ड डीपर इनटू दिस टूर्नामेंट नेदरलैंड्स डिफरेंट कर सकता है, दैट व्हाइल दे आर ऑन देयर वे बैक होम दे सर्टेनली नीड टू डेवलप अ लॉट मोर क्रिकेट। सो बाजिद भाई, कमिंग ऑन टू यू, नेदरलैंड्स अब यहाँ से आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ जी बाजिद भाई, रन आउट या स्टंप? स्टंप है। देखिए आसान सोचने की क्या बात है, स्टंप है ये। देखिए बता रहे सर, मैं एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ सर। वर्ल्ड कप में सारे विकेट कीपर बैटर स्कोर कर रहे हैं, आज नहीं कर पाए, क्या वजह बनी? आज मैं कल बताऊंगा। हो सकता है वार्नर ने कभी गिलव्स पहने हो। मुझे लगता है इन्होंने करीम के वहां से ना सालन नहीं खाया, वो जो कौन सा था जी, बर्रा मटन बर्रा स्वीट्स और क्या गिलव्स क्या एक मैच में पहने हैं।
अच्छा मैं निकालते हैं वार्नर ने हाँ। पहने हैं मैंने देखे हैं। अच्छा हाँ इसने पहने हुए थे, यूं रोटियां लगा रहा था। Anyway, this is us wrapping up Australia versus Netherlands from our studios. और before we leave, of course, हम थोड़ी सी बात करेंगे कल के मैच के ऊपर। एक बड़ा एक्साइटिंग एनकाउंटर होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक। Let's do it. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Well, this is it for today. So, but before heading out, I think Roha, you have something special to share with our audiences. Yes, I think थोड़ी सी बात शहजाद अब कल के मैच के ऊपर भी करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है कल बेंगलुरु में between England and Sri Lanka. Two teams that have shown spirit but have yet to prove what they're really worth. इन दोनों टीम्स का कल मैच होगा जी बेंगलुरु में। शहजाद क्या लगता है अभी तक जो फॉर्म हमने देखी है इंग्लैंड की, they really need to step up और I think ये उनके पास एक golden chance है। I believe that both of these teams are at an equilibrium, you know, so certainly, you know, the team which is going to perform well tomorrow is the team which is going to go victorious back home. But for rather than me or you sharing their opinion, I think it's best that we move on to our experts over here. So Rashid भाई ढूंढ रहे हैं अभी के नहीं आ गया कीवी है कितने मैचेस में टेस्ट मैच में ये देख लो। टेस्ट मैच सर वनडे में फिर देखे नहीं बनता ना यार उसने ग्लव्स तो पहने हुए हैं ना। बात ये हुई है कि कीपर हो और परफॉर्म ना करे, ये नहीं हो सकता। हो नहीं सकता इस वर्ल्ड कप ये में। बात है इस वर्ल्ड कप। चलें कल जॉस बटलर फिर क्या कर रहा है, बिकॉज कल का जो मुकाबला है कमिंग ऑफ द लॉस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 229 रन्स का, कल किस माइंडसेट में होंगे जॉस बटलर? देखिए हम तो सम टाइम थोड़ा फन को बीच में या लाफ्टर को ले आते हैं, लेकिन कल हंसने का टाइम नहीं है इंग्लैंड के लिए। बहुत सीरियस मैच खेलने की ज़रूरत है क्योंकि वो उन्होंने बहुत सी चीज़ों को गेन करना है। अपना लॉस्ट मोमेंटम गेन करने की वो कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि एक बड़ी विक्ट्री, एक कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री वो लें ताकि उनका कॉन्फिडेंस वापस आए। वो चाहेंगे उनके बैट्समैन रन्स करें, उनकी बॉलिंग आउट करके दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो डिफेंडिंग चैम्पियन वो चाहे ना कहें कि हम डिफेंड करने आए हैं, वो कहलाएंगे डिफेंडिंग चैम्पियन। और शायद अगर वो अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस है उन्होंने कल के मैच से स्टार्ट ना की तो शायद उनकी कैंपेन यहाँ पे ओवर हो जाए। तो इसलिए इंग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि कल अपने मैच को मोर देन सीरियस एटीट्यूड के साथ खेले। जो भी उनके प्लान्स हैं उसको क्लियर हेडेड होकर उसकी एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड कर सकती है क्योंकि उनकी कैपेसिटी है उनके अंदर। लेकिन अभी तक जो उन्होंने क्रिकेट खेली है वो अपने प्लान्स को किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए नज़र नहीं आए। वो प्लान जो इनके लिए कामयाबी की वजह बनी। तो आई होप कि कल से इसको स्टार्ट करें और आई विश देम ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। बीके दूसरी तरफ मेंडिस, उनके सिपाही क्या माइंडसेट लेके आएंगे कल इंग्लैंड के अगेंस्ट? इंग्लैंड अब मुकाबला वही है कि वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट पोटेंशियली, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि पोटेंशियली वेरी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप, लेकिन वो बैटिंग लाइनअप आपको अभी तक नज़र नहीं आई। श्रीलंका का भी मतलब वर्ल्ड कप का मैच कोई बेमकसद नहीं है, तो श्रीलंका का भी ये होगा कि हम मैच तो जीतें। और उनको शायद ये ज़रूर देखेंगे कि भाई इंग्लैंड की बैटिंग जो है, स्पेशली जब हमारे स्पिनर्स ऑपरेट करेंगे तो इंग्लैंड की बैटिंग अभी तक उस तरह फायर नहीं की, तो वो एक इशू ज़रूर है मेरे हिसाब से कि पिछले मैच में जो ये खेले तो इनकी बॉलिंग लाइनअप कुछ बेटर बैलेंस की थी। रजीता को इन्होंने खिलाया और मेरा करुण रत्ने जो फास्ट बॉलर हैं वो भी खेले, तो वो बैलेंस थोड़ा सा बेहतर हो गया है। अब जाहिर है श्रीलंका तो नहीं चाहेगा मैच हारना, लेकिन अब देखेंगे कल जो कंडीशंस हैं, बार बार वही बात, कंडीशंस जो हैं वो इंग्लैंड के स्टाइल ऑफ प्ले को सूट जरूर करेंगी, लेकिन अभी तक इस वर्ल्ड कप में हमने इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ प्ले देखा ही नहीं। वाओ, जी राशिद भाई, द लायन और द किंग्स क्रॉस कल देखेंगे। टफ मैच है, 2 पॉइंट्स का है। अब जैसे मुश्किल हो जाती है कि यार कितने कम मैचेस रह गए, पॉइंट ज़्यादा लेने हैं जी। स्किल्स मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है इंग्लैंड की टीम में, शायद वो अपने वे में खेल नहीं रहे। जैसे आज नजर आया ना ऑजी वे, बेसबॉल साइड पे कर दी उन्होंने, ऑजी वे द बेस्ट वे। लेकिन ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि उनका वे है क्या, वो भी अभी तक कल दिखाएंगे ना, बोला ना कल दिखाएंगे, कल वो बिल्कुल दिखाएंगे तो आगे जाएंगे। कल वो दिखाएंगे तो आगे जाएंगे। हाँ जी, दिखाना तो गेम ऑन है। एग्जैक्टली, गेम ऑन है।
लेकिन इससे पहले कि हमने जो इंडिया से मैच है जी, ऑस्ट्रेलिया से मैच है और ये मैच है, ये टीम ऐसी है कि तीनों को हरा सकती है, तीनों को हरा सकती है, तो 8 पॉइंट तो मिल जाएंगे ना, क्योंकि हमें भी जीतना है आगे जाके। आखिरी मैच अगर वो हमसे ये आखिरी मैच कर दिया हमसे, तो इनको हम माइनस नहीं कर सकते, इनके पास टैलेंट मौजूद है, अपना वे में नहीं खेल रहे, और ये जब खेलेंगे 400 नजर आ रहे हैं ना, इन सब का रिकॉर्ड ये टीम तोड़ सकती है, इन सब का रिकॉर्ड ये टीम तोड़ सकती है। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी नीड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम जे डॉट, बट सर्टनली इट्स टाइम दैट वी अनाउंस आवर विनर एज वेल। तो आंसर जो है मेरे ख्याल सब जानते हैं, हफीज भाई ने एडम ज़ैम्पा का नाम लिया था, उनकी इकोनॉमी चूंकि कम है, नेदरलैंड्स में भी 4 विकेट्स मौजूद थी, लेकिन चूंकि इनकी इकोनॉमी वाज एट द लोएस्ट, व्हिच इज व्हाई यू नो द विनर हैपेंस टू बी सेइंग एडम ज़ैम्पा, ऑब्वियसली जिन्होंने कॉल करके कहा। लेकिन सर मैं बाजी भाई के लिए भी ताली होनी चाहिए, इन्होंने आज भी 389 बोला था, वे नोबडी एक्सपेक्टेड दैट एज वेल। आज जहां पे इन्होंने घोड़े मेरे ख्याल है कल रुकवाए थे, आज भगवाए ना लिया करना ये प्रोजेक्शन। विनर बताएं शहजाद। Ladies and gentlemen, the winner for today happens to be चौधरी अनवर from फैसलाबाद। सर एक बार फिर से हमारे ग्राइंड जो है भाई वो जीते हैं। आपको जे डॉट की जानिब से एक खूबसूरत सा परफ्यूम जो है वो अरसाल कर दिया गया है, इंशाल्लाह जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। खुशबू लगाइए, खुशबू लगाना बड़ी जरूरी है, गर्मी हो या सर्दी हो, ये आपने हमेशा याद रखना है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू एंजॉय दिस गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ जे डॉट। थैंक यू सो मच जे डॉट for being a wonderful gift partner. Indeed, thank you J Dot and thank you to everyone who has been engaging with our show। आप लोग कॉल करते हैं, शो को फॉलो करते हैं, शो के लिए इंतजार करते हैं, और यहाँ तक खबर रखते हैं कि हम देर से आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतना शो को फॉलो कर रहे हैं। सो फ्रॉम आवर एंटायर टीम बहुत बहुत शुक्रिया। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आप सबसे अब हम सुबह मुलाकात करेंगे बिफोर दिस मैच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम ऑन है। वी विल सी यू इन द मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज। गेम ऑन है।